गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर जो 5 है सैलरी इनकम એટલે કે પગારની આવકો, उसमें मैं आपको आज सम नंबर 18 करवाने वाली हूँ जो मोस्ट आईएमपी है। उसमें ऐसा दिया गया है कि मिस्टर जाडेजा एम्प्लॉयड एज द प्रोडक्शन मैनेजर इन मारुति लिमिटेड फर्निश्ड you the following information। बेसिक सैलरी अप टू 31 अक्टूबर 2022 को है 50,000 पर मंथ। उसके बाद सैलरी बेसिक फ्रॉम 1 नवंबर 2022 को है ₹60,000 पर मंथ। ठीक है, એટલે કે મારુતિ લિમિટેડમાં પ્રોડક્શન મેનેજર તરીકે નોકરી કરતા શ્રી જાડેજાએ નીચેની વિગતો પૂરી પાડેલી છે। એમાં પહેલું છે તારીખ 31/10/2022 સુધી માસિક મૂળ પગાર 50,000 અને તારીખ 1/11/2022 मासिक मूल पगार 60,000। उसके बाद सेकंड नंबर का है यहाँ पे DNS अलाउंस @ 40% ऑफ बेसिक सैलरी એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગારના 40% લેવાનું છે। यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं बोला गया है। उसके बाद थर्ड नंबर का है यहाँ पे बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर 2022 ऑन बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस एप्लिकेबल फॉर that months એટલે કે ઓક્ટોબર 2022 તે મૂળ પગાર તે માસનો મૂળ પગાર પ્લસ મોંઘવારી ભથ્થાની રકમ જેટલું એક માસનું બોનસ મળેલ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एट द रेट 16% ऑफ बेसिक सैलरी એટલે કે કર્મચારીના માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં માલિકે મૂળ પગારના 16% લેખે ફાળો આપ્યો છે। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है प्रोफेशनल टैक्स पेड ₹300 ऑफ विच ₹200 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर એટલે કે વાર્ષિક વ્યવસાય વેરાના 3,000 પૈકી 2,000 માલિકે ચૂકવ્યા છે। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वॉज प्रोवाइडेड टू जाडेजा फॉर बोथ कंपनी एंड पर्सनल यूज। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज 45,000 एंड कंप्यूटर ₹35,000 वेर acquired by the company on 1 December 2022। એટલે કે શ્રી જાડેજા કંપની તરફથી ઓફિસરના અંગત કામ માટે લેપટોપ તથા કમ્પ્યુટરની સગવડ મળેલ છે। કંપનીએ 1/12/2022ના રોજ 35,000માં કમ્પ્યુટરની અને 45,000માં લેપટોપની ખરીદી કરી હતી। उसके बाद 7th नंबर का है मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय सीसी ऑफ इंजन एक्सटेड 1.6 लीटर्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम 1 November 2022 means for both office and personal use। repair and running expenses of ₹45,000 from 1 November 2022 to 31st March 2023 were fully met by the employer। the motor car was self-driven by the employee। उसके बाद 7th नंबर का है यहाँ पे गुजराती में है तारीख 1/11/2022 रोज थी कंपनी मालिकनी 1.6 सीसी थी વધુ ક્ષમતાવાળી કારની સગવડ શ્રી જાડેજાને મળી હતી જેનો તેઓ બંને હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરે છે। આ ગાડીનો તારીખ 1/11/2022 થી 31/3/2023 સુધીનો નિભાવ ખર્ચ 45,000 કંપનીએ ભોગવેલ છે અને કર્મચારી પોતે ગાડી ચલાવે છે। उसके बाद 8th नंबर का है लीव ट्रैवल concession given to employee his wife and 3 children, one daughter age 7 and twins son age 3। cost of air tickets reimbursed by the employer was 30,000 for adults and for 45,000 rupees for 3 children। Mr. Jadeja eligible for available exemption this year to the extent it is permissions in law। એટલે કે કર્મચારીના કુટુંબની પત્ની અને 3 સંતાનો જેમાં 7 વર્ષની પુત્રી અને 3 વર્ષના 2 જોડકા પુત્રોનો સમાવેશ થાય છે। આ વિમાનની મુસાફરી અંગે લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન એટલે કે LTC પુખ્ત
વયની વ્યક્તિઓ માટે 30,000 અને બાળકો માટે 45,000ને ઇકોનોમી વર્ગની ટિકિટોની રકમ ભરપાઈ કરી આપી હતી. જો જાડેજા વર્ષને આવી સહાય મેળવવા માટે હકદાર છે અને નિયમ મુજબ કરમુક્તિ મેળવે છે. ठीक है. उसके बाद कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर જાડેજા ફોર ધ અસેસમેન્ટ યર 2023-24. એટલે કે આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે શ્રી જાडेजा करपात्र पगारनी गणतरी करो. ठीक है. फर्स्ट हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ श्री જાडेजा ऑफ फाइनेंशियल યર 2022-23. એટલે કે શ્રી જાડેજાનો પાછળનું વર્ષ 2023-24 करपात्र आवक करपात्र पगार. उसमें लिख देंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट विगत अने रकम. उसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बेसिक सैलरी. अभी ये जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे कितनी दी गई है, वो है यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि 31 अक्टूबर 2022 को 50,000 पर मंथ है. ठीक है, वहाँ तक. એટલે કે 31/10/2022 સુધી માસિક પગાર मूल એટલે કે मासिक मूल पगार 50,000 છે. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिक सैलरी जो है उसमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 50,000 पर मंथ. ठीक है, कितने मंथ से, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 7 मंथ हुए. तो यहाँ पे 3,50,000 आएगा. उसके बाद ब्रैकेट में हमें लिखना है, यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 नवंबर 2022 रुपीज़ 60,000 यानी कि कितने मंथ बचे यहाँ पे, तो 11, 12, 1, 2 और 3 5 मंथ्स. तो वो यहाँ पे 60,000 हमें लेना है. तो यहाँ पे आएगा 3 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा होगा 6,50,000. उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया है DNS अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું 40% 40% ऑफ बेसिक सैलरी. ये जो बेसिक सैलरी हमें मिली 6,50,000 उसका 40% हमें लेना है यानी कि 2,60,000 DNS अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું. उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का हमें दिया है अक्टूबर 2000 बोनस इक्वल टू 1 मंथ ऑफ सैलरी पेड इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में कितनी सैलरी है 50,000. तो यहाँ पे पहले लिख देंगे बोनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 50,000 मंथली इन अक्टूबर. ठीक है, प्लस हमें क्या करना है, तो यहाँ पे DNS अलाउंस दिए गए प्लस हमें DNS अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ्स. ठीक है, DNS अलाउंस हमें लेना है. तो यहाँ पे हमारा बोनस कितना आएगा, तो 50,000 जो यहाँ पे हमने लिया और DNS अलाउंस 2,60,000 है, उसका हमें प्लस करना है. कितना करेंगे, तो 20,000 करेंगे. वो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ये जो बोनस है वो 1 मंथ का दे रहे, ठीक है, 1 मंथ का. तो ये जो यहाँ पे DNS अलाउंस है 2,60,000 डिवाइड हमें 12 से करना है. तो यहाँ पे 2,60,000 जो है उसमें हम लोग प्लस करेंगे 20,000. तो टोटल हमारा बोनस आएगा 70,000. यहाँ पे ये जो बोनस है वो अक्टूबर मंथ की जो सैलरी है वो हमें लेना है, प्लस हमें मोंघवारी भत्थू यानी कि DNS अलाउंस का 40% यानी कि 50% हमारी मंथ की सैलरी हुई, इनटू हम लोग 40% निकालेंगे तो हमारा 20,000 मिलेगा. तो उन दोनों का प्लस करके यहाँ पे 70,000 आएगा. उसके बाद એટલે કે બોનસ જે છે ઓક્ટોબર મહિનાની 50,000 આવક લેવાની છે, પ્લસ મોંઘવારી ભથ્થું 40% છે, તો 50,000 ના 40% લેવાના છે 20,000. उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज एट द रेट 16% ऑफ बेसिक सैलरी. ठीक है, अभी यहाँ पे 60% बेसिक सैलरी का एम्प्लॉयर का है यानी कि ओनर का, मालिक का. ठीक है, तो वो यहाँ पे कितना हमें 12% तक लेस मिलेगा. ठीक है, तो
बेसिक सैलरी का हमें दिया गया है तो 6,000 जो है उसका 60% हम लोग निकालेंगे तो 1,04,000 आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे 60% इज इक्वल टू 1,04,000। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर का पोर्शन कितना है 12% के ऊपर का तो 4% है। ठीक है, तो 4% के हिसाब से कितना, तो वो यहाँ पे आएगा 26,000। ठीक है, 26,000 वो हमारा टैक्सेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर का है, वो है प्रोफेशनल टैक्स पेड ₹3,000 ऑफ विच 2,000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर। વધુ ક્ષમતાવાળી કારની સગવડ શ્રી જાડેજાને મળી હતી, જેનો તેઓ બંને હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરે છે. આ ગાડીનો 1/11/2022 થી 31/3/2023 સુધીનો નિભાવ ખર્ચ 45,000 કંપનીએ ભોગવેલ છે અને કંપની પોતે कर्मचारी पोते गाड़ी चलावे छे. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अभी ये जो कंपनी है वो कंपनी की गाड़ी, ये जो गाड़ी एम्प्लॉय को दी है तो वो यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी है वो यहाँ पे नहीं दी गई, या मगर 1.4 सीसी से ज़्यादा है तो यहाँ पे कार का लिख देंगे। कार का प्रोविज़न है कि पर मंथ 2400 हमें लेना है पर मंथ। कभी जब भी कार जो है वो ओनर कौन होगा, एम्प्लॉयर, और जब भी ड्राइवर के साथ वो देगा तो प्लस हमें 900 करना है। और 1.6 सीसी से ऊपर वाली कार है तो हमें 2400 लेना है। अगर 1.6 सीसी से कम वाली कार है तो हमें यहाँ पे 1800 लेना है। ठीक है, प्लस 900 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3300। ठीक है, 2400 प्लस 900 3300। अभी इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो हमें मंथली मिला है तो इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 39600। अभी यहाँ पे हमें कोई भी टोकन अमाउंट मिला है वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे कोई भी टोकन अमाउंट नहीं दिया गया है। अभी हमें याद रखना है कि यहाँ पे रिपेयर्स एंड रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹45,000 फ्रॉम 1 November 2022 to 31 March 2023 वेयर फुल्ली मेट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अभी मैंने आपको जो बताया कि 45,000 जो है एक्सपेंसेस वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे 2400 पर मंथ किया है लिखा है, और 900 ड्राइवर का लिखा है। 900 ड्राइवर का कब हम लोग लिखेंगे, जब भी हमें ड्राइवर दिया गया हो। तो मोटर कार वॉज सेल्फ ड्राइव्ड बाय द एम्प्लॉय। अभी ये जो कार है वो एम्प्लॉय खुद चल रहा है, उसके लिए ड्राइवर नहीं रखा है, यानी कि ये 900 ड्राइवर के नहीं आएंगे। अब हमें जो है 2400 पर मंथ दिया गया। अभी ये जो कार कभी दे रहा है तो 1 नवंबर को दे रहा है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मार्च तक हमारा ये जो ईयर कंप्लीट होता है तो 5 मंथ्स का हुआ। तो इंटू हम लोग 5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इंटू 5 तो 12,000 आएगा। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 8th नंबर का है, એટલે કે આ જે ગાડીની સુવિધા આપણને આપેલી છે તેમાં આ જે ગાડી જે છે કંપનીની ખુદની છે એટલા માટે, અને 1.6 સીસીથી ઉપરવાળું એન્જિન છે તો 2400 પર મંથ આપણે આપવાના છે, અને જે ખર્ચ માલિકે ચૂકવેલો છે તેના પર આપણે અહીંયા કાંઈ નથી કરવાનું। પછી આ જે ગાડી છે જે 1 નવેમ્બરના આપેલી છે, 1 નવેમ્બરથી 31 માર્ચ સુધી 5 મહિના થાય છે તો 2400 × 5 કરશું તો 12,000 આપણો જવાબ આવશે। उसके बाद 8th नंबर का है लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि GTC गिवन टू एम्प्लॉयज हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एज 7 एंड ट्विंस सन एज 3। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास रिमेंबर्स बाय द एम्प्लॉयर वॉज 30,000 फॉर adults and ₹45,000 for 3 children. Mr. Jadeja is eligible for available exemption, यानी कि ये जो मिस्टर जाडेजा है वो किस में आता है, एलिजिबल फॉर अवेलेबल एग्जेम्पशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल इन लॉ।
એટલે કે આ જે જાડેજા છે તેની એક પત્ની અને એક છોકરી જે છે 7 વર્ષની છે પુત્રી અને 3 વર્ષના 2 જોડિયા બાળકો છે. હવે તેમાં શું છે કે પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓ માટે 30,000 અને બાળકો માટે 45,000 ઇકોનોમિક વર્ગની ટિકિટોની રકમની ભરપાઈ કરી. અને શ્રી જાડેજા છે તે વર્ષના આવી સહાય મેળવવા માટે હકદાર છે, यानी कि इसको ये जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट मिलती है. तो અને નિયમ मुजब कर मुक्ति मेळवी सके छे. ठीक है, अभी ये जो दोनों अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल है, वो यहाँ पे दिया गया है. कैसे कि यहाँ पे श्री जाडेजा आ वर्षनी आवी सहाय मेळवा माटे हकदार छे. ठीक है, आने नियम मुजब कर मुक्ति मेळवी सके छे. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट आएगा. और एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि LTC जो है उसमें क्या है कि 2 चिल्ड्रन अगर है तो उसमें लेस होगा. तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन कैसे हमें लेना है, फर्स्ट डॉटर लेनी है, उसके बाद जो ट्विंस सन है उसको एक अज्यूम करके लेना है. तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन के लिए हमें लेस मिल जाएगा. अगर 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा. तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगी LTC शॉर्ट में, आपको ये फुल्ली लिखना है. ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है. इसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल ग्रॉस सैलरी निकालेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पे माइनस हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है 50,000. ठीक है, उसके बाद माइनस प्रोफेशनल टैक्स 3,000 करना है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसमें भी बताया था कि जो प्रोफेशनल टैक्स है 2,000 कंपनी का जो ओनर है वो पे कर रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा. और लास्ट में 3,000 हम लोग माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल सैलरी मिलेगा. तो 6,50,000 प्लस 70,000 प्लस 26,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000. तो यहाँ पे आंसर आएगा 7,60,000. उसके बाद हमें क्या करना है, ये दो जो है डिडक्शंस वो हमें माइनस करना है. तो वो जब भी हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे हाउस का दिया गया है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पे अभी टोटल नहीं होगा. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हाउस, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुई है, हाउस यहीं दिया ही नहीं है, ये सभी सही है. इसका टोटल हम लोग फिर से करेंगे 6,50,000 प्लस 2,60,000 प्लस 70,000 प्लस 26,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000. तो यहाँ पे आंसर आएगा 10,20,000. यहाँ पे मैंने 2,60,000 नहीं लिया था. ठीक है, वो गलती हो गई. उसमें अभी हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स, એટલે કે स्टैंडर्ड डिडक्शन અને व्यवसाय वेरो बाद करશું. माइनस 53,000 इसका टोटल होता है. और अभी ये जो ग्रॉस सैलरी हमें मिला उसमें से माइनस हम लोग करेंगे डिडक्शंस. तो यहाँ पे 9,67,000 हमारा फाइनल आंसर आएगा. ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर 18. तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.